Hello everybody, good afternoon. Very delighted to meet you all and thank you so much for joining in. How many of you have been are really willing to attend this workshop and gain knowledge out of it? Thank you very much, thank you. So I will try my level best to deliver as much as I can in this workshop. I'm a physiotherapist and I've worked in India and abroad as well. And I'm into rehabilitation. I see antenatal, postnatal, I see neuro patients, I've worked in ICUs. So I've worked in all spheres where all a physiotherapist can work. And I've also done home visits of patients who are bedridden and are in palliative care. So you can ask me as many questions you like, you can keep thinking, and in the end we can have a discussion. And even otherwise also, if anybody wants to ask anything, can ask me. So what is health? Is it just absence of disease or absence of pain? No, it's not. It's about a complete physical, mental and social well-being, right? So अगर मैं stressed हूँ because of some problems घर पे या at my job, I won't say that I'm healthy. I'm still not healthy, okay? So it's about a complete thing. Socially, how I am with others, how others are with me. Mentally, whether I'm stressed mentally or not. Physically, whether I'm physically stressed or not. Notebook check करना है, bend करके, board पे लिखना है, और proper time नहीं मिल रहा है, सुबह उठ के घर का wind up करना है. There is so much to do, है ना? कितना कुछ होता है, board पे भी लिखना है, notebook check है, laptop पे काम करना है. तो क्या होता है, बहुत सारे रिपीटेटिव इंजरीज होते रहते हैं, नेक में, शोल्डर में, अपर बैक में, राइट आर्म में, अगर कोई राइट आर्म ज़्यादा यूज़ कर रहा है, रिस्ट में नमनेस फील होती है. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है. बेसिकली फिजियोथेरेपी इज नॉट जस्ट अबाउट क्योरिंग पेन, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ टू नॉट हैव पेन ऑल्सो. ओके, सो वॉट एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ इज ऑल्सो टू अवॉइड ऑल दिस, कि हमें ये सब चीज़ें कैसे नहीं होंगी. How many teachers worldwide are actually suffering from, there is a data that was collected, a lot of research has been done, 40 to 90% लोगों को aches and pains teachers को होते हैं, but generally जो female teachers हैं उनको 74% they do have pain. यहाँ इस hall में किस किस को aches and pains रहते हैं? Almost everybody has. And in your profession, now because all this boring thing I had to add, to make it more knowledgeable and everything. So how much is the neck used in teaching profession? How much is the shoulder used? How much elbow is used? So सबसे ज़्यादा lower back use होती है. And मुझे पता चला कि neck pain बहुत से teachers को होता है. So अब हम लोग पहले थोड़ा सा अंदर देख लेते हैं neck के अंदर है क्या. So basically we'll start with the neck. जो हमारा neck है, it is made of 7 vertebrae, C1 से लेके C7 तक. एक हड्डी है और उसके अंदर एक hollow bone है. उसके अंदर से स्पाइनल कैनाल जा रहा है, उसके अंदर से स्पाइनल नर्व्स हैं, CSF फ्लूइड है. ओके, अब अगर हम अपने नेक का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो सब जो नसें हैं, जो नर्व्स है, वो दबनी शुरू हो जाएंगी. वर्टिब्रास आर वन ऑन द अदर, एक के ऊपर एक वर्टिब्रास पड़े हुए हैं, उनके बीच में डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क. दे आर लाइक बर्गर्स. सोचो बहुत सारे बर्गर्स ज्वाइन कर दिए हैं और बीच में उनके आलू पैटी है. समझ में आ गया? सो जब आप अपने नेक को स्ट्रेंथन नहीं करते हो या ठीक पोस्चर में नहीं बैठते हो तो वो डिस्क जो है वो दबनी शुरू हो जाती है. सो अगर वो डिस्क बहुत ज़्यादा दबती है बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ नॉट स्ट्रेंथनिंग द नेक मसल्स, वो इतनी ज़्यादा प्रेस होनी शुरू हो जाती है कि वो नर्व एंडिंग्स को टच करती है, एंड दैट इज़ व्हाट कॉजेज टिंगलिंग एंड नमनेस इन द फिंगर्स, और आपको अनईजीनेस रहती है, पेन रहता है नेक में. सो इफ़ यू हैव नेक पेन, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू? एनीबडी? Okay. Okay. Exercises. Okay. But you already have pain. Then what will you do? Exercises to avoid the pain initially. But what will you do if you already have pain? Anything else? You will rest. Very good. Now that was the best. सबसे पहले तो आप रेस्ट करोगे. Being a physiotherapist, इतने सालों से पेशेंट्स देखते हुए, what I have realized is कि सबसे ज़रूरी है दिन में कम से कम 4 बार सेक लेना. सेक लेने के भी 2 तरीके हैं. फर्स्ट इज मॉइस्ट हीट पैक. आप घर में क्या करोगे, टॉवल लोगे, हैंड टॉवल्स, उसको गीला करोगे, स्क्वीज करोगे और माइक्रोवेव में रख दोगे फॉर 2 मिनट्स. ठीक है. अब नेक में एक मसल होता है ट्रेपीजियस. किसको नेक पेन होता है? कोई भी एक जना आ सकते हैं. एनीबडी? यही पेन है, यहाँ पर हो रहा है दबाने से, और यहाँ पर भी है ना. और लेट मी चेक, मसल्स आर वेरी टाइट बट देयर आर नो नोड्यूल्स. तो इनको जनरली जिनको भी नेक पेन होता है, द पेन इज मोस्टली इन द ट्रेपीजियस मसल. ओके, यहाँ पर जो मसल है, जिनको भी नेक पेन है ना, आप खुद अपने ऑपोजिट हाथ से ऑपोजिट साइड पे टच करके देखो, ये मसल टेंडर होगा. टेंडर मतलब दबाने पे दर्द होगा.
पहले तो जिसको नेक पेन नहीं हो रहा है वो हाथ ऊपर उठाएंगे, हाँ जिनको नेक पेन नहीं होता है। आपने सबने इसको अवॉइड करने के लिए, सी दिस इज नॉट जस्ट अ वर्कशॉप फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी हैविंग एक्स एंड पेन्स, दिस इज ऑल्सो सो दैट वी डोंट एंड अप इन एक्स एंड पेन्स, राइट? सो द basic thing, the basic vision of me, matlab of my basic vision being a physiotherapist is increase the blood supply of the area. Why? Because it has got so much nutrition. So every time you are moving a joint, you are increasing the blood supply to that area and you are giving nutrition to that area. Now the next thing that you have to do is shoulders ki rotation. How many of you in the classroom after every 2 classes do the rotations of the shoulder? Nobody. So do it now. Clockwise and anti-clockwise. Now बहुत जनों को अपर बैक पेन होता है। होता क्या है, हमारे 2 फ्लैट बोन्स होते हैं अपर बैक में, दे आर कॉल्ड एज स्कैपुला। मैम आप 1 मिनट आओगे? सो यहाँ पर एक बोन है और यहाँ पर एक बोन है, दीज आर 2 बोन्स, इनको हम स्कैपुला बोलते हैं। ये जो एरिया है, इस एरिया की जो मोबिलिटी है थोरेसिक स्पाइन की, ये सबसे कम होती है। क्या कोई थोरैक्स को ऐसे मूव कर सकता है ऊपर नीचे जैसे हम नेक को बेंड करते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मसल फाइबर्स होते हैं वो सब आपस में उलझ जाते हैं। मैम थैंक यू, यू कैन सिट। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दोनों शोल्डर्स को पीछे इकट्ठा करना है एंड होल्ड एंड देन रिलैक्स, होल्ड एंड रिलैक्स, अगेन होल्ड and relax. Now this is you're bringing the 2 bones साथ में, and the next is you have to imagine कि आपने 2 bones को opposite jeans में लेके जाना है अपने pockets में. So what will you do? You will not just take them back, you will also take them down. नीचे भी लेके जाएंगे. And breathe out, relax. Okay? And next is breathe in, arms open. Please don't hit your partners. And breathe out. And your back has to be straight. Breathe in. And breathe out. And the third moment is breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Now we have covered the upper back. Anybody having shoulder pain? Now what happens? All this neck pain, shoulder pain, they are all associated. हमारे neck के muscles ऐसा नहीं है कि सिर्फ neck को ही hold करें. They are all connected to each other. So if you are relaxed, if your posture is correct, and if you are moving your shoulders, अब shoulders में क्या होता है? It's a very complex joint. It's a very very complex joint और बॉडी के आगे से और पीछे से जुड़ा होता है, राइट? क्योंकि पीछे वो जो ट्रायंगुलर बोन मैंने बताया एंड ये हियर इज अ बिग बोन, ये इसके आसपास एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर एक हेड है, वो हेड ही मूव करता है. सो फॉर शोल्डर्स यू हैव टू डू रोटेशंस. अभी आप सुबह घर से रेडी होके निकल गए फटाफट, ये किया वो किया, सबके टिफिन रेडी हैं, स्कूल आ गए, चले गए, एंड व्हेन यू गो टू द बेड यू आर डेड, है ना? फिर आप बोलते हो मैं ब्रेन फॉग हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मुझसे कोई बात मत करो, ची 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 ची, घर में झगड़े लड़ाइयाँ और खाना नहीं बन रहा है, जोमेटो ऑर्डर हो रहा है, स्विगी हो रहा है, गलत खाना खा रहे हैं और गलत खाना खाते हो और बीमारियाँ लग रही हैं, डायबिटीज़ हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हो, जिंदगी निकल गई, खत्म. ये हमने नहीं करना है. टुडे यू ऑल विल ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ. पेशेंट को पीठ में से निकल के पैर तक दर्द जा रहा है, लेग के पीठ के साइड से, हिप में से होता हुआ बिहाइंड द थाई, साइड ऑफ द लेग टिल द फुट. पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ सिवियर पेन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दैट इज शियाटिक पेन. अब इसमें भी एक चीज़ है विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर, सबके घर में एक ना एक शियाटिका का पेशेंट होता ही है. मनु शियाटिक नर्व, मनु शियाटिका होगी, मेरी नस दब गई, ऐसा कहते हैं ना सब. मैंने डॉक्टर ने सर्जरी दस दी. ओनली व्हेन द पेशेंट डजंट नो कि उसको यूरिनेट करने में पता नहीं चल रहा है और जब उसको चलने का पता नहीं चल रहा है, पैर के नीचे सेंसेशन नहीं है, तभी पेशेंट को सर्जरी करानी है, नहीं तो नहीं करानी है. हमारे सिर्फ मसल टाइटनेस ही होती है और पेशेंट को लगता है कि शियाटिका है, क्योंकि वो गूगल पढ़ के आ जाते हैं. डोंट रीड गूगल प्लीज़, डोंट सेल्फ डायग्नोज. लेग ऊपर भी नहीं उठ रही होती है इतनी सी, इतना हैमस्ट्रिंग और काफ मसल टाइट होता है और इतना पेन हो रहा होता है. क्यों? क्योंकि मसल की टाइटनेस ही इतनी हो चुकी होती है, बॉडी बेयर ही नहीं कर पाती है वो टाइटनेस को, एंड दे थिंक इट इज शियाटिका. इट इज़ नॉट शियाटिका. वेरिकोज वेन्स क्या है? जब हमारी जो वेन्स हैं, वेन्स के अंदर जो हमारी आर्टरीज है उनके अंदर वॉल्स है टू टेक द ब्लड बैक टू द हार्ट, टू पंप इट. ओके, हमारी जो वेन्स है ना उसके अंदर नहीं होता ऐसा. उसके अंदर हमें जो काफ मसल का, एंड सेम फॉर लिम्फेटिक ऑल्सो, सो आई विल बी डूइंग स्वेलिंग एंड द वेरिकोज वेन टुगेदर.
अब होता क्या है, जब हम खड़े रहते हैं ना, ब्लड पूल हो जाता है वेन्स के अंदर। ये एक वेन है, ये लंबी सी एक वेन है लाइक अ पाइप, उसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया, बट मैं तो खड़ी ही हूँ। अब वो ब्लड ऊपर कैसे जाएगा? उसको ले जाने का क्या तरीका है? समबडी टेल मी व्हाट इज द वे कि वो वापस कैसे जाएगा? एलिवेट, ओके ओके, बट वी कैन नॉट डू लाइक दिस एंड, हाँ ऊपर करके। द बेस्ट वे इज वॉक। एवरी टाइम आई एम टेकिंग अ स्टेप, मेरे काफ मसल में पंपिंग एक्शन हो रहा है, ठीक है। माई काफ मसल, हमारी बॉडी में 2 हार्ट्स हैं, एक ये वाला और एक यहाँ पर, ओके। सो योर काफ इज ऑल्सो अ टाइप, योर काफ मसल इज ऑल्सो हार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज, अगर किसी को बहुत स्वेलिंग होती है पैरों में, एंड नेक्स्ट इज, सबके शूज अपने वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है। आपके पैर में ही सारे बॉडी के सारे छोटे 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 पार्ट्स, एक ब्रेन में एक पैर में भी है। सो योर शूज शुड बी वेरी कंफर्टेबल। अपने इनसोल्स डालो, अगर किसी के शू अंदर की तरफ से घिस रहे हैं तो उसका ध्यान रखो कि वो क्यों घिस रहे हैं। अंदर की तरफ वाला वेज डालो जो उसको स्ट्रेट कर दे। अगर बाहर से घिस रहे हैं, अगर आप अपने कोई पुराने वोन आउट शूज देखोगे ना, किसी का ऐसे होगा और किसी का ऐसे होगा। सो दैट इज हाउ वी असेस द पेशेंट्स कि अपने जूते दिखाओ या आपके जूते कौन सी साइड से घिसते हैं। दिस ऑल लीड्स टू आर्थराइटिस, क्योंकि गलत प्रेशर भी तो जॉइंट्स पे वैसे ही पड़ रहा है ना। वेरिकोज वेन्स के लिए फर्स्ट इज नॉट डीप मसाज बट हल्की फुल्की मसाज। एलिवेट द लेग्स, पंपिंग एक्शन ऑफ द काफ मसल, पैरों को ऊपर उठा के लेग्स को ऊपर उठा के पैरों को आगे पीछे, मेक क्लॉकवाइज सर्कल्स एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स। नाउ द नेक्स्ट इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस इज ऑफ मेनी टाइप्स, ओके। सबसे पहले, बट वी जस्ट कवर द मेन थिंग। आर्थराइटिस इज डीजनरेशन ऑफ द जॉइंट। मेरा कोई जॉइंट है, हमारा सबसे ज़्यादा जो वेट बेयरिंग जॉइंट होता है दैट इज द नी जॉइंट, ओके। सो नी जॉइंट में हमारी अपर बॉडी का पूरा वेट हमारे नीज पे आता है, इसीलिए हमारे नीज को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो अब जब नी के ऊपर पूरी बॉडी का वेट आ रहा है, दो द जॉइंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मगर फिर भी उसके अंदर जो मेनिस्कस होता है और जो कार्टिलेज होता है वो हमारी एज के साथ साथ डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स क्या देते हैं पेशेंट्स को? वो ग्लूकोसामीन देते हैं ताकि आप वो खाओ एवरीडे एज अ सप्लीमेंट, आपका उससे पेन कम होगा एंड इट हेल्प्स ऑल्सो। बट कभी भी ना किसी भी ट्रीटमेंट का, किसी भी प्रॉब्लम का एक ट्रीटमेंट नहीं होता है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए। सो फॉर सम पीपल हु हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस 40 ईयर्स के बाद सबको ही होता है जनरली, बट उसको ना आपके हाथ में है कि उसको कितना स्लोली आपने उसको प्रोग्रेस होने देना है। अगर तो आप उसको पकड़ लेते हो और यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट ना, वो हील तो नहीं होगा मगर उससे ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। सो जो मैंने आपको लेट के प्रेसिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं, दे आर द सिंपलेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर आर्थराइटिस। नाउ अब हम हेयर में क्या करेंगे? वी डू द हेयर पुल मेथड। वी डिवाइड द हेड इनटू मेनी पार्ट्स, सेक्शंस बना लेंगे छोटे छोटे हेड में, एंड सब लोग घर जाके ट्राई करना। दिस इज वेरी हेल्पफुल। यहाँ से सेक्शन लेना है, एक्चुअली इसका कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि 2 सेंटीमीटर का या 4 सेंटीमीटर का, यू जस्ट हैव टू टेक अ सेक्शन वेगली और इनको इकट्ठा करके सबको इक्वल पकड़ के यू जस्ट हैव टू पुल इट, आराम से धीरे से पुल करना है। उससे क्या होगा? नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होंगे, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा? रिलैक्सेशन। यू हैव टू होल्ड 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब किसी को थोड़ा सा पुल भी ज़्यादा लग सकता है, किसी को ज़्यादा भी कम लग सकता है, तो जिसको जितना कंफर्टेबल है आपने उतना ही करना है। किसी के बाल मत उखाड़ देना, ओके। सो बी केयरफुल। एंड एंड में पूरे हेड के सेक्शंस बनाने के बाद सारे बाल पकड़ के यू हैव टू होल्ड एंड यू हैव टू पुल देम अप। सारे हेड को रिलैक्सेशन मिल जाएगा उससे, ठीक है। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू स्क्वाट एवरी डे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वाट, नीचे कौन बैठता है पैरों के बाहर? सी बी ऑनेस्ट, इतने लोग नहीं बैठते होंगे, ओके, ठीक है। अब आपको पता है कि स्क्वाटिंग इतना इंपॉर्टेंट है, वी डोंट हैव इंडियन टॉयलेट्स एनी मोर, जिसकी वजह से जो हमारा पेल्विक फ्लोर है, पेल्विक फ्लोर में इतनी ज़्यादा टाइटनेस आ जाती है, एंड देन हु इज ब्लेम्ड लेटर ऑन? द गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो पेल्विक फ्लोर स्ट्रेच ही नहीं होता है कभी। अनलेस एंड अंटिल यू डोंट सिट डाउन, हाउ विल यू स्ट्रेच द पेल्विक फ्लोर? एंड देन पीपल कम टू, उनको बैठ, आजकल इट इज़ सो सैड टू से दिस कि लड़कियों को नीचे बैठना ही नहीं आता है, उनको ग्रिल पकड़ा के नीचे बिठाना पड़ता है कि बैठ के तो देखो।
If you are not squatting, start squatting. Start with 1 count, second day 2 counts, then 3 counts. Ask your daughters and your sons also to squat. Many of you get your vitamin D test done regular once a year. Once a year कराते हैं. सच बताना कितनों का कम आता है? सबका ही ऑलमोस्ट. अब द थिंग इज कि बहुत बार सब लोग क्या करते हैं, विटामिन डी ले लेते हैं, कैल्शियम लेते नहीं है. अब कैल्शियम नहीं लेंगे तो विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा. गॉट इट? सो रिमेंबर वन थिंग, vitamin D if you take without calcium will not be absorbed in the body. It is waste, it will come out in the urine. Okay? विटामिन डी क्या कर रहा है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन ऐसे एलिमेंट्स का, ऐसे चीज़ों का फूड में से उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? इट इज़ वीकनिंग ऑफ द बोन. व्हाई डू द बोन्स गेट वीक? Because they are not getting calcium, no? How will the bone get calcium? If you take calcium with vitamin D. Your body will tell you मुझे वीकनेस फील होती है, चला नहीं जा रहा, एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम तक नहीं जा पा रही हूँ. ऐसी चीज़ों में आप क्या करोगे? यू विल गेट अ विटामिन डी टेस्ट डन. आप लोग अपना B12 और विटामिन डी टेस्ट कराएंगे ना, मोस्टली सबका कम आएगा. जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है और थकावट हो रही है, पेन्स हो रहे हैं, जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हो, इम्यूनिटी वीक है, डिप्रेशन हो रहा है और जॉइंट पेन हो रहा है और माइल्जिया हो रहा है, कभी कहाँ दर्द है, कभी कहाँ दर्द है. सो B12 भी आप लेंगे. B12 किन चीज़ों में है? आई विल टेल यू. सबसे ज़्यादा जो B12 होता है दैट इज़ इन शकरकंदी जो हम खाते हैं. अदर दैन दैट एवरी डे एक दूसरे को याद दिलाना है कि एक टिफ़िन में 10 क्रैनबेरी, ब्लूबेरी या ब्लैकबेरी और थोड़े से पंपकिन सीड्स लेके आने हैं. दे आर रिच ऑफ विटामिन B12. ओके? इंस्टेड ऑफ ईटिंग अ गोली, वाई कांट यू ईट इट इन फूड फॉर्म और पेट भी भरेगा. सो एज अ स्नैक एक छोटे टिफिन में ब्रिंग योर नट्स, ब्रिंग दीज बेरीज एंड ब्रिंग द सीड्स ऑल्सो. ओके? एनीवेज, अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर मेरा ये स्ट्रेस रोज होता गया, आज मैं सेंट सोल्जर में आई हूँ, कल मुझे संतीशर में जाना है, परसों मुझे इधर जाना है, सब जगह 11 बजे, वो तो कांस्टेंट स्ट्रेस हो गया ना पहुंचने का हर जगह. दैट इज वन टाइप ऑफ स्ट्रेस. अदर हो सकता है मुझे रोज चोटें लग रही हैं, मैं गिर रही हूँ, मुझे दर्द हो रहा है. दैट इज बैड. हैविंग स्ट्रेस वंस इज गुड फॉर द बॉडी. ओके? बट हैविंग कॉन्स्टेंट स्ट्रेस विल लीड टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर, लाइक डायबिटीज. तो कॉन्स्टेंट स्ट्रेस नहीं होना है, उसको हमेशा काउंटर कोप करना है बाकी चीज़ें करके साथ में. ओके? विच ऑल आई हैव टोल्ड यू. ईटिंग गुड, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, कीगल एक्सरसाइज, छोटा छोटा कुछ खा लो. उन्होंने किचन, अपनी घर में किचन बना ली है, वो जो किचन गार्डन होता है, कुछ कुछ ऐसा करना है. ओके?